Today's topic is IR spectroscopy. You are looking at the picture where there is a window and the light it is entering from the window. If you place a prism in the path of this light, the concerned light is split into the various components. Where is the infrared light? It is the bottom portion of the visible region. Below the red color, there is the presence of the visible light. Usually we don't detect it, only we give the Vibgyor spectra, visible spectra for the white light, but we neglect this portion, infrared light. But we can judge it with the help of a thermometer. If you place a thermometer in the path of this light, then you see there will be a rise in the mercury level of the thermometer. So this means that this light is having a heating effect. Infrared region is having the heating effect. When a sample is placed in the path of the beam of infrared, then the temperature in the thermometer it becomes less. That shows the sample absorbs the light or absorbs the infrared region. There is a small part of the infrared region. If this is varied, this portion, see here, if it is varied, then absorption also varies. That is indicated by the rise in the thermometer that is different for the different portion of this infrared region. Now that portion below the visible region is the infrared region. It contains three parts. One is near infrared, another is mid infrared, another one is the far infrared. So see here, the light or the visible light that contains the electric field and the magnetic field components. So these are the electric field and magnetic field components. They are oscillating in a one plane, and this is a plane polarized light, but both are perpendicular to each other as well as perpendicular to the line of propagation. ये जो white portion है, that line is the line of propagation, and out of red and blue, one may be taken as the electric field, another may be taken as the magnetic field component. Now see here, that is the wavelength corresponding to the infrared region. So from where it varies, in the far infrared region, the value is for the wavelength it is 500 micrometer, and wave number it is 20 centimeter inverse, and energy which is given by this sector it is given below here. We are less concerned with the energy, mostly we are concerned with the wave number and the wavelength. As we reach to the mid infrared region, it reaches to the 6.6 micrometer, and as we reach to the near infrared region, it is having value 1.1 micrometer. So the infrared region it varies from the 1.1 micrometer to 500 माइक्रोमीटर. इतनी वेरिएशन जो है वो इंफ्रारेड रीजन की है, जिसमें नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड पोर्शन जो है वो आता है. Whenever we are concerned with the spectra, mostly we are concerned with the wave number starting from 500 centimeter inverse. यहाँ 800 शो कर रहा है वैसे ये, and it ends up to the 6000 centimeter inverse. इससे ऊपर वैसे IR स्पेक्ट्रा जो वो नहीं आता है. तो एब्जॉर्प्शन जो मोस्टली 6000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे नीचे और 500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे नीचे जो है वो सैंपल उतना वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करता है. सो सी द स्पेक्ट्रा हेयर, all the oscillating molecules, organic molecules or inorganic molecules, they oscillate, and the region varies from this 400 centimeter inverse up to the 4000 centimeter inverse.
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा होता है वो इसी रीजन के बीचों बीच आता है. इनऑर्गेनिक का वेरी कर सकता है, दैट मे बी लेसर देन द 400 सेंटीमीटर इनवर्स एंड मे बी अबव द 4000 सेंटीमीटर इनवर्स. लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो पार्ट जो है मिड इंफ्रारेड रीजन का आता है. एंड द मिड इंफ्रारेड रीजन see here it start from the 400 to the 4000 centimeter inverse. So this forms the part of the instrumentation. ये आपके सिलेबाई में वैसे है नहीं तो इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो एक सैंपल में आपको यहां शो कर रहा हूं. दिस इज द न्यू इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर बोलते हैं. तो यहां से जो है वो IR आ रही है. ये चॉपिंग मिरर है. इससे जो है वो दो साइड से बीम जो है वो स्प्लिट होता है. उसके बाद वो सैंपल से पास होता है. सैंपल के पास होने के बाद उसको जो एम्पलीफायर में और एम्पलीफायर से पास होकर फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके जो है वो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हैं. सो दैट इज नॉट योर पार्ट ऑफ योर सिलेबाई. ओनली यू हैव टू डील विद द what is infrared spectra, how it is being taken, what are the hot bands, what are the overtones, what are the harmonic and enharmonic oscillator. Let us move to that part. This is the instrument. So this shows a classical model of the simple molecule. Here the molecule is having two atoms, both are of similar masses m and m, and they are separated by a distance, but distance it is here being shown with the help of the spring instead of the line as usual it is shown. Reason being, since vibration is there, so in order to show the vibration, the elasticity or the bond is elastic one, that is why it is being taken as the spring instead of the straight bond. So whenever a molecule stretch or vibrates, then the bond length it will change. तो d जो इनके बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच में, and as you will play it, you see by the stretch or by the vibration there is change in the displacement as well as in the potential energy. Now let us little bit understand it. This model is for the harmonic oscillator. तो यहां देखो d इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है और d से या तो x यूनिट कम हो जा रहा है या d में x यूनिट जो है वो एड अप हो रहा है. As it stretch then x units are increase, as it compress x units are decrease. तो जैसे ये कंप्रेशन वाली साइड जाएगा तो ये वाली साइड जो वो एनर्जी चेंज होगी, और जैसे ये स्ट्रेच वाली साइड जाएगा तो इस तरीके से जो इसकी एनर्जी चेंज होगी. तो ये जो पार्टिकल आपको इसमें मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज नॉट एनीथिंग एल्स बट इट इज शोइंग द एनर्जी कि किस लेवल पे कितनी एनर्जी जो वो आ रही है. ये जो ग्राफ आपके सामने शो किया है दैट इज शोइंग द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, एंड पोटेंशियल एनर्जी इट इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर. सो दिस इज ए पैराबोला एंड यू नो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax. तो यहां पर कितना आएगा, E इज इक्वल टू 1/2k x स्क्वेयर. x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाय k. सो दैट इज ए इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. दैट इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. एंड दिस कर्व इट इज सिंपली टर्म्ड एज अ क्वांटम बेल इसको बोलते हैं. और ये जो किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है. हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब है कि जिसमें इक्वल स्ट्रेच और इक्वल कंप्रेशन हो उसको हम जो हो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज रिलेटेड टू द विद द फोर्स कांस्टेंट. पीछे जो है वो k की वैल्यू बताई थी यहां पर. सॉरी ई की वैल्यू बताई, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. व्हाट इज के इज द फोर्स कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट कहां से, हुक्स लॉ अगर जो आपने कहीं डिस्कस किया है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो उसमें जो है फोर्स जो है या दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज इक्वल टू माइनस
k इंटू एक्स, माइनस इसीलिए लगता है कि जिस साइड को फोर्स लगती है डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसीलिए उसमें नेगेटिव साइन लगेगा। और इक्वलिटी के लिए जो वहां पर आप लिखोगे दैट इज द फोर्स कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इट इज लिंक्ड एज म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई, it is under root k by m. K is the force constant, m is the if you are considering the this one and this one similar, तो total mass जो वो m ही consider कर रहा है, जबकि यहां पर जो है वो m की बजाय क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड मास होनी चाहिए सिस्टम की। क्या होनी चाहिए, रिड्यूस्ड मास। दैट विल बी कवर्ड लेटर ऑन दैट पोर्शन। इट इज ओनली मॉडल टू शो यू हाउ द oscillation takes place and how the potential energy changes. If we are having larger force constant, K की वैल्यू अगर ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा दो एटम्स के बीच में उतना ज्यादा जो है बॉन्ड की पावर या स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा फ्रीक्वेंसी जो है उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। सो यू सी हियर द एनहांस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि जो क्वांटम वेल है ये नैरो हो जाएगा अगर फोर्स कांस्टेंट जो है वो ज्यादा है। अगर फोर्स कांस्टेंट लेस है तो ये वेल जो है, क्वांटम वेल जो है, ये स्ट्रेच हो जाएगा, इट स्ट्रेच मोर और बिकम्स लेस नैरोर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स लेस। सो दैट इज द क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द oscillation of a molecule. If the masses which are oscillating they are larger, तो पीछे जो केस था उसमें जो है वो मास जो है वो सिस्टम की क्या थी, दैट वाज वेरी लेस। ये पीछे जो है ये दोनों पार्टिकल जो छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पोर्शन में जो है मासेस मैंने क्या कर दी, बिगर कर दी। तो जब डिनोमिनेटर को आप इंक्रीज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। So if you are having the larger masses, then frequency of oscillation becomes lesser. But if we are having the more masses, less mass, then frequency of oscillation increases or it will increase. जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन टोटल एनर्जी जो E इक्वल टू के एक्स के हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो किसी भी लेवल तक ये जो है वो वाइब्रेट कर सकता है, या कितनी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो इसके बीच में हो सकती है, प्रोवाइडेड ऑसिलेशन जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेशंस होनी चाहिए। तो सी हियर, यहां जो ये स्ट्रेच होके आ रहा है तो इसमें इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल जो वो गेन कर सकता है। लेकिन अगर हम डिस्कस करेंगे इसको किसके लिए, एक स्प्रिंग और बाल के मॉडल के लिए, तब तो ये जो भी मैंने बोला बिल्कुल करेक्ट है कि इसके बीच में कोई भी एनर्जी जो वो उसकी पॉसिबल है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं देन दिस इज नॉट ओके। We have to apply the quantum mechanics in order to discuss the model of the molecule. So this is quantum mechanical model of the molecule. Here you see the stretch and compress of the or vibration of the molecule. The Schrodinger wave equation when it is solved for this type of harmonic oscillator for the molecule or model of the molecule, we get a equation here for the energy En is equal to n plus half into h mu, where En is the energy of the vibration level, n is the vibrational quantum number, n is the vibrational quantum number, h is Planck's constant, mu is the frequency. So the vibrational constant, it is vibrational quantum number, it can have any value 0, 1, 2, 3. If you substitute 0 here, n equal to 0, E0 will be equal to 0 plus half h mu, that will have the value half h mu. तो वाइब्रेशनल जो है अगर क्वांटम नंबर 0 भी हो तो भी वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू जो वो 0 पॉसिबल नहीं है। यूजली ये होता है कि बहुत सारी मोशंस जो हैं वो क्वांटम नंबर के 0 होने पे 0 हो जाएगी, लेकिन
वाइब्रेशनल लेवल जो है उसमें क्वांटम नंबर जीरो के होने के बावजूद भी जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी जीरो नहीं होती है. दैट मीन्स टू से कि व्हेन ऑल द मोशन सीज देन इवन द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट. सारी की सारी मोशन सीज होंगी लेकिन वाइब्रेशनल मोशन जो फिर भी जो वो सीज नहीं होती है. तो अगर आप यहां पर वैल्यू पुटअप करोगे तो जीरो के हिसाब से हाफ एच म्यू दैट इज द ई जीरो, फिर 1 पुट करोगे 3/2 एच म्यू, 5/2 एच म्यू, 7/2 एच म्यू, और अगर उनका आप डिफरेंस चेक करते हो देन यू विल फाइंड द डिफरेंस इज एच म्यू ओनली. इनमें जो है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो लिमिटाइज करती है कि यही डिस्क्रीट लेवल जो है वो एनर्जी लेवल जो है वो इस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन एनर्जी लेवल जो है वो पॉसिबल है. इट मीन्स वाइब्रेशन एनर्जी इज आल्सो क्वांटाइज्ड वन. सो हियर if you show the absorption from the ground level to the first level, then by the absorption it will have the energy E1 is equal to 3/2 h mu, and when it returns to the ground state energy becomes E0 half h mu. और अगर आप इनका डिफरेंस चेक करते हो दोनों का, the difference is only h mu. The selection rules for the vibration spectra are delta n is equal to plus minus 1. तो या तो इस लेवल से इस लेवल में जा सकता है या सेकंड लेवल फर्स्ट एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में जा सकता है. तो डेल्टा एन इक्वल टू प्लस माइनस 1 ही जो है वो इसने जो है वो आपके पास जो सिलेक्शन रूल है वो पॉसिबल है. वाई ही इज ओनली फिक्सिंग दैट एक्साइटेशन इज फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू द फर्स्ट ग्राउंड लेवल टू द फर्स्ट एक्साइटेड लेवल. रीजन बीइंग इफ यू कैलकुलेट the population of these levels by Boltzmann distribution, you will find that first excited state it is only 1% populated in comparison to the ground state. तो मोस्टली जो है वो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होते हैं, वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट में. तो इसीलिए जो है वो डेल्टा एन प्लस माइनस 1 जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जो है वो अलाउड सिलेक्शन रूल्स हैं. दीज आर द अलाउड सिलेक्शन रूल्स. सो सिलेक्शन रूल जो अलाउ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है द गैप बिटवीन द टू लेवल्स इट इज ऑफ द एच म्यू यूनिट. तो एच म्यू यूनिट के हिसाब से जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जो वो आपके पास लाइन स्पेक्ट्रा जो प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोड्यूस होगा? लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो प्रोड्यूस होगा. नो सी हियर, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हायर है तो वेल जो वो क्वांटम वेल जो नैरोर हो जाता है और इनके बीच में एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप इंक्रीज हो जाएगा. सो यू विल सी हियर दैट इज एब्जॉर्बिंग एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. यहां आपको शायद ये वैल्यू नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन दैट इज लाइंग एट द 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. बट एज द frequency becomes less either due to the low force constant or due to the you can say larger masses, then the separation between the energy levels it becomes narrower here. Again, if the force constant decreases more, they becomes closely and closely spaced. इसका मतलब जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा स्पेसिंग जो है वो एनर्जी लेवल में उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम फोर्स कांस्टेंट होगा उतनी स्पेसिंग जो है वो एनर्जी लेवल्स में कम होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी. ये पीछे जो हमने केस डिस्कस किया ये सारा का सारा जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में था. लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा मॉलिक्यूल के साथ होता है? नो. This type of quantum discussions or harmonic discussions they cannot be done with the actual molecule. Actual molecule के लिए जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ जो बहुत डिफर करता है. अभी आपने पीछे डिस्कस किया तो ग्राफ जो है वो देखो यहाँ पर बिल्कुल पैराबोलिक ग्राफ जो वो आपके पास डिस्कस किया मैंने. पैराबोलिक मीन्स जो भी इसमें स्ट्रेच या कंप्रेशन था वो इक्वल था और हार्मोनिक वाइब्रेशंस थी. एन हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है ये, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूल जो वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है. अगर आप बहुत ज्यादा बॉन्ड को स्ट्रेच करोगे, सो सी हियर बाय द स्ट्रेच ऑफ द बॉन्ड विल ब्रेक. बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा. और जो
इस साइड है, अगर बहुत ज्यादा इनको क्लोजर लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम इंक्रीज हो जा रही है, जबकि पीछे जो है वो पैराबोलिक कर्व था। तो ये जो है एक एस्टिमेटेड कर्व है, नॉट द एक्चुअल कर्व। इसको मोर्स पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोर्स पोटेंशियल। तो मोर्स पोटेंशियल में जो है वो देखो, जहां मॉलिक्यूल्स या सॉरी एटम्स काफी क्लोजर आ रहे हैं, उस स्टेट में इमीडिएटली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और अगर आप उनको बहुत दूर ले जाओगे तो एक स्टेज पर जो है वो इसमें ब्रेकडाउन आ जाएगा बॉन्ड के बीच में, और द बॉन्ड विल ब्रेक. So that is the n-harmonic potential as well as potential of the actual molecule. Remaining portion we will discuss next day.